Good morning, students. Welcome to social science class. Today we are going to start chapter 12, Impact of British Rule on India. That how Britishers changes our society, our education, our culture. On all parts of our society, we have seen that there is so much impact of British culture on our Indian culture or on our society, on our education. The English, it is also given by the Britishers. Right? हमारी अपनी लैंग्वेज क्या है? हिंदी, संस्कृत. But we are speaking in English and it is the impact of the education system that was given by the Britishers. It means Britishers changes each and everything of our country. They brought changes in every aspect of Indian society, that is education, public institution, caste system, and our society. Different type of changes they had done. Some changes are good and some are bad. Good, as we can say that they have destroyed that caste system. Okay, and they just changed the women's condition in the society. That these changes are good, but some other changes that they try to make in our society are wrong. So let's discuss about the changes that they made in our country. But before that, we will discuss the education system of our country before the British. Okay. Firstly, we have read in our previous topics that Hindus take education in Pathshala, Gurukul, and higher education in Nalanda universities, okay, or Takshila University, right? And Muslims went to madrasa for the education, right? And education is based on just the basic concepts are there. ठीक है? They read the religious books that were written in there on regional languages, and they learn mathematics, okay, or higher education covered subjects like Sanskrit, Arabic, law, logic, medicines, philosophy, ये सब चीज़ें उसमें होती थी. So Britishers wanted to change the education system of our country. Why? Because they want Indians that can help them to rule over our country. Only with the help of Indians, they could rule over India. They need some people, those can translate the language of ruling party and the language of ruled ones. ठीक है, जिन पर रूल किया जा रहा है उनकी बात और जो रूल कर रहे हैं उनकी बात को ट्रांसलेट कर सके. सो दे नीड एजुकेटेड पीपल फॉर देयर ऑन बेनिफिट, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस. ठीक है, उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन स्टार्ट की क्योंकि उन्हें ऐसी इंडियंस की ज़रूरत थी जो उनकी हेल्प कर सकें रूल करने में. राइट? तो वो इंडियंस के लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं कर रहे थे, वो अपने बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे थे. सो लेट्स स्टार्ट. एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश. द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक प्रॉफिट एंड नॉट टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इंडियंस. वो अपने प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे थे. दे आर नॉट वर्किंग फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस. राइट? And the missionaries opened a few English schools, but their purpose was to promote Christianity. Missionaries means missionaries क्या होती हैं? जहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं वो अपनी रिलीजन को स्प्रेड करते हैं.
साधु संत जहाँ पर रहते हैं, दोज वर मिशनरीज। ठीक है, तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इंडिया आई टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, नॉट टू गिव एजुकेशन। ठीक है, वो यहाँ पर इंडिया में एजुकेशन प्रमोट करने नहीं आए थे। दे आर गिविंग एजुकेशन, they were giving education, but their main motive was to promote Christianity. Okay, so Britishers made some efforts in the field of education. The first one is Charter Act of 1813. Charter Act of 1813, it was the first significant step in which Britishers sanctioned a sum of 1 lakh rupees for education in India. इससे पहले इतनी बड़ी जो इनकम, इतना बड़ा जो मेन मनी थी उसे एजुकेशन के लिए यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट ब्रिटिशर्स यूज्ड और सैंक्शनड 1 lakh rupees for education, and they established Hindu and Elphinstone College in Calcutta and Bombay to produce English educated Indian allied class. English education based Indians को grow करने के लिए उन्होंने कैलकाटा और बॉम्बे में हिंदू कॉलेज और एल्फिंस्टन कॉलेज स्टार्ट किया। ओके, they wanted the Indians, those have western etiquettes, western dressing style, western eating habits। ठीक है, ऑन द होल उन्होंने अपने जैसा ही एक ग्रुप इंडिया में डेवलप करने की कोशिश की जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रह सके। ओके, ब्रिटिश वांटेड साइकोलॉजिकल स्लेवरी। अगर आप किसी पर्सन को अपने अकॉर्डिंग ही ग्रो करेंगे तो वो नेचुरली आपके जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, और आपकी ही बात को फॉलो करेगा कि हाँ ये सुपीरियर है। तो ब्रिटिशर्स ने सेम कंडीशंस को फॉलो किया। उन्होंने ऐसा एक स्लेवरी ग्रुप स्टार्ट किया जो टोटली ब्रिटिशर्स के अंडर था। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसका ड्रेसिंग सेंस और उसका सब कुछ, जो भी बोलने का तरीका हुआ, खाने का तरीका हुआ, एटिकेट्स, मैनर्स जो भी हैं वो सब कुछ ब्रिटिशर्स स्टाइल के थे। ओके, थॉमस मैकेले said we must do our best to form a class who may be interpret between us and the million whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste and opinion। कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारे जैसे तो नहीं दिखते हैं बट वो वर्क हमारी तरह करेंगे, उनका टेस्ट ब्रिटिश होगा, उनकी सोच ब्रिटिश होगी। ओके, सो वी नीड दैट टाइप ऑफ पर्सन। And when they started English schools, so there was a conflict between the Britishers that what type of medium they had to choose for giving instructions. Okay, for that there was a controversy between the Orientalist and the Anglicist। ठीक है, Orientalist कौन थे? They favored the traditional system with Sanskrit and Persian as the medium of instruction। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो अपनी ही लैंग्वेज में दी जानी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हिंदी या पर्शियन लैंग्वेज में ही दी जाए। एंड देयर वर एंग्लिसिस्ट, दोज फेवर्ड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और लॉर्ड मैकेले उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। राइट, नेक्स्ट इज वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इट वॉज इशूड बाय चार्ल्स वुड। इट गेव अ प्लान फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज वर सेट अप एट द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वर ऑल्सो सेट अप। ये जो एक सिस्टम था, इस सिस्टम के अंडर चार्ल्स वुड ने एक नया प्लान बनाया कि एजुकेशन के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए सेपरेट। और उसने इसके अंडर बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया
एंड टू गिव ट्रेनिंग, उसने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप किए. ओके, सो दिस वॉज डन बाय चार्ल्स वुड. क्लियर? आफ्टर दैट Hunter Education Commission was established. It was established in 1882, and in this, what was the main working of that? इसका मेन वर्क था कि चेक करना, अपॉइंटेड टू लुक इनटू द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच, कि कितना काम हुआ है जो वुड्स डिस्पैच ने अपनी सिस्टम में कहा, अपनी प्लानिंग में बताया, तो उसमें से कितना वर्क हो चुका है. सेकेंडरी एजुकेशन कैसी है, मिशनरीज किस तरह से वर्क कर रही हैं, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंडिया में दी जा रही है या नहीं दी जा रही. ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम वॉज मेड फॉर चेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच. ओके, then Indian University Act of 1904, Lord Curzon, the governor of that time, जो लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय था इंडिया का, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइज करने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 फॉर्म किया. ओके, एंड वाई इट वॉज पास, इट वॉज पास टू चेक द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, कि इंडिया में प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही. अकॉर्डिंग टू हिम, जो प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम था वो इंडिया में रेवोल्यूशनरीज को ग्रो कर रहा था. ठीक है, लॉर्ड कर्जन का ये मानना था कि जो उस टाइम पर एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उससे पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज ग्रो हो रहे थे. ठीक है, सो ही पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904 टू चेक द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, के इंडिया में जो एजुकेशन दी गई है इट इज़ इन प्रॉपर मैनर और नॉट, इसमें अच्छे से ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही. ठीक है, एंड दिस वॉज annoyed the Indians. Okay, and the next is Varda education system. This education scheme was launched by, or not launched but initiated by गांधी जी. गांधी जी ने ये सजेस्ट किया था वर्धा एजुकेशन सिस्टम 1937 में, एंड बिकॉज ही बिलीव दैट जो एजुकेशन सिस्टम था एट दैट टाइम, जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्टेड था वो क्या कर रहा था, वो एक इंफीरियर कम्युनिटी को डेवलप कर रहा था. ठीक है, ऐसी कम्युनिटी जिसमें एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, दैट वी आर सुपर, वी नो द इंग्लिश एंड वी वर हायर देन द अदर इंडियंस. ठीक है, तो इस टाइप की एक सेंस उनके माइंड में आ रही थी, और एक स्लेवरी की मेंटेलिटी भी थी कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही वर्क करना पसंद कर रहे थे, उनके लिए ब्रिटिशर सब कुछ थे. तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम को हटाने के लिए गांधी जी ने एक एजुकेशन स्कीम स्टार्ट की 1937 में, जिसमें क्या था, मेन जो मोटिव था उसका, टू प्रमोट मॉरल्स लाइक ट्रुथ, गुडनेस, जस्टिस और सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, कि लोग सच बोलें, सच्चाई से अच्छे वर्क काम करें, जस्टिस के लिए वर्क करें, और अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो दूसरों के लिए. ठीक है, तो इस तरह की जो मॉरल्स हैं वो लोगों में डेवलप होना ज़रूरी है. ये गांधी जी ने वर्धा एजुकेशन स्कीम जो थी वो सजेस्ट की थी 1937 में. एंड द लास्ट वन इज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. In 1943, the British appointed John Sargent to prepare a national system of education. ठीक है, और इस नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या सजेस्ट किया गया? It suggested the universal and compulsory free education for children between 6 to 14 years of age for all around development of the students. 6 to 14, जैसे हमारे आज के टाइम में भी you all know that for the child below 14 the education is free in government schools. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने
6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी है। ठीक है, तो सेम यही जो स्कीम थी वो जॉन सार्जेंट ने सजेस्ट की थी कि सबके लिए कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए और फ्री एजुकेशन होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो 6 to 14 ईयर्स के बीच के हैं। ठीक है, सो दैट उनका जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है वो हो सके। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस प्लान वर इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत सारे जो उसकी और उन्होंने स्कीम्स बनाई थी और रिकमेंडेशन सजेशंस दी थी, वो सब सजेशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इम्प्लीमेंट की थी। ओके, सो दिस इज अबाउट द एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर्स ने हमारी एजुकेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया। ठीक है,